We are going to discuss about average. This is first class on average. There is going to be one more class on average. See, if you see previous year questions, every year UPSC is asking at least one question on average. In 2020, UPSC has asked 4 questions on average. 2016 2 questions, 2017 2 questions, 2019 2 questions, and 2021 and 2022 1 question. And if you see, based on just one concept, UPSC has asked all these questions. सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा. आज इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट कॉन्सेप्ट ओनली. सो शुरू करते हैं. सी, फर्स्ट थिंग इज व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज. सी, एवरेज is what? In simple terms, average is equal distribution. Equal distribution. बस सिर्फ ये याद करना है. In simple terms, see, what do you mean by equal distribution? Say Virat Kohli has scored like 100 runs in one match and 0 runs in another match and 50 runs in one match and 0 runs in other match. So here 4 matches, total matches is like 4 matches. So he scored different runs. So if you want to take average of this, then you will come out as 100 plus 0 जितने भी score है plus 50 plus 0 divided by 4. That is like 150 divided by 4. So जितना भी ये आएगा ये एवरेज होगा. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन गेट द फॉर्मूला ऑफ एवरेज. एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इज इक्वल टू sum of observations by total number of observations. See, this is the formula. See, if you see here, sum of observations like 100 plus 0 plus 150 plus 50 plus 0, that is sum of observations by total number of observations is total matches played, that is 4. So by doing that you will get average. ठीक है. अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं. अनदर एग्जाम्पल, इट इज लाइक एवरेज ऑफ 100, 20, 30, 40 एंड 50 क्या है? So average, how do you calculate? Average is equal to sum of observations. Sum of observations is like 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50 divided by number of observations 1, 2, 3, 4 and 5. Total 5 observations. So if you add it, it is like 150 divided by 5. So the average is 30. 5 3s are, and so average is 30. So that's how you will calculate the average. See, and this, by using this formula, just this concept, we are going to solve all these questions UPSC has asked. So एक ही formula based पे हर साल question आ रहा है. And this formula can be written as like this also, right? See, like if you want sum of observations is equal to average into total number of observations. ठीक है. क्योंकि ये भी पता होना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि बिकॉज यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. यूपीएससी गिव्स एवरेज
एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिराइव करना है. बस ये दो फॉर्मूला से we'll solve many questions. So let's not waste time and directly go to the previous year questions. इन्हीं फॉर्मूला से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2016. सी just easy question based on one concept. See, जितने भी questions है ये सारे questions है UPSC is based on one concept. So that is why you need to know the average concept as very easy concept, like marks fetching concept. Like say in 2020 UPSC has asked 4 questions based on average. 4 questions is like 10 marks, right? So and this year 2 questions 5 marks, 5 marks and all. So it is very important concept. So शुरू करते हैं. See, the average monthly income of a person in certain family of 5 is 10,000. So here क्या है, average monthly income दिया है. So we know the formula, number भी दिया है. So average is equal to sum of observations by total number of observations. ठीक है, इधर ये देख लिया. ठीक है, sum of observations by total number of observations. So here average is given. Average monthly income of a person is 10,000. So here average के प्लेस में 10,000 is equal to sum of observations हमें नहीं दिया है. ठीक है, so sum of observations को ऐसा ही रखते हैं. And average income of person of certain family of 5. So total number of observations क्या है, 5. So sum of observations is like, मान ले 5 members है. So 5 members का member 1 का income plus member 2 का income plus member 3 income, member 4 का income plus member 5 का income. So total income of monthly income of persons इससे आ जाएगा. So 50,000. So इससे मल्टीप्लाई 50,000 इज इक्वल टू 5 मेंबर्स का पूरा मंथली इनकम ऑफ 5 मेंबर्स. ठीक है, एवरेज 10,000 है सबको मिला के, पूरे सबका सम कितना हो जाएगा, 50,000 होगा. ठीक है, देन what will be the average monthly income of a person in the same family if the income of one person increased by 1,20,000 per year. See here what you need to know, here average monthly income is given, here per year में 1,20,000 increase हो रहा है. So one person कितना हो रहा है, 1,20,000 पर ईयर. ठीक है, सो अभी पर ईयर का है तो पर मंथ का कितना होगा, पर मंथ का होगा 1,20,000 बाई 12. लाइक मंथली है तो बाई 12. सो दैट इज 10,000 रुपीज पर मंथ. सो अब एक आदमी का पर मंथ 1,000 रुपीज इंक्रीज हुआ है. सो आफ्टर दैट मंथली इनकम ऑफ 5 मेंबर्स कितना होगा, सो 50,000 प्लस 10,000 जो इंक्रीज हुआ, एक आदमी का पर महीने का 10,000 इंक्रीज हुआ. सो टोटल इज 60,000 रुपीज. सो एवरेज कितना पूछ रहा है, सो व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम इफ, अगर 60,000 है सो डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाइक मंथली इनकम ऑफ 5 मेंबर्स आफ्टर ये 60,000 बाई 5. सो वो आ जाएगा 12,000. 5 12s are 60. सो
12,000 will be the average income. So just one formula and you will get the answer. So चलो और questions देखते हैं, आपको और clarity मिल जाएगी. See here, look at question asked in 2016. See again, ये भी 2016 में, this is second question in 2016 based on one formula. So monthly average salary paid to all employees in a company was 5,000. Company was salary paid to 5,000. Monthly average salary paid to male and female employees was 5,200 and 4,200 respectively. ठीक है. Then percentage of males employed in the company. अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मंथली एवरेज इनकम पेड टू ऑल एम्प्लॉयज. सो एवरेज इज इक्वल टू 5,000 दिया हुआ है. ठीक है. देन मंथली एवरेज सैलरी, सो एवरेज सैलरी ऑफ सैलरी टू मेल्स is equal to 5,200. Then females is 4,200. तो 4,200 दिया हुआ. So अभी we don't know number of males in the company and number of females in the company. So let X be male employees. ठीक है. Then let Y be female employees, because average formula में sum of observations by total number of observations. So हमें average दिया हुआ है, total नहीं पता है. ठीक है. and sum of observations भी नहीं पता है. अब इससे हमें average formula अप्लाई किया. So total income of, let X be male लिया. So average of male is equal to average income of male by sum of observations, sum of income of males by X, क्योंकि X मेल का नंबर x लिया. सो एवरेज इज गिवन, इट इज 5,200. 5,200 इज x इज इक्वल टू सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल मेल्स. ठीक है. इन सिमिलर वे 4,200 y इज इक्वल टू सम ऑफ इनकम ऑफ फीमेल्स. ठीक है. अब एवरेज ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इज 5,000. सो 5,000 इज इक्वल टू x प्लस वाई, क्योंकि x सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, सो मेल्स एंड फीमेल्स का, एंड टोटल सम ऑफ इनकम ऑफ मेल्स एंड सम ऑफ इनकम ऑफ फीमेल्स का. सो 5,200x प्लस 4,200 y. यही हो गया ना एवरेज. दिस इज गिवन, राइट. सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी आर गेटिंग सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स का एवरेज ये दिया हुआ. सो 5,000x प्लस 5,000y इज इक्वल टू 5,200x प्लस 4,200y. सो अब ये सब आ जाएगा, तो इधर से इधर ये इधर आ जाएगा. सो 200x इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 800y. 5,000 माइनस 4,200. सो दैट इज लाइक 2 4s are. सो x इज इक्वल टू 4y. ठीक है. x इज इक्वल टू 4y आया. सो इससे जैसे मान ले कि x है. सो व्हाट्स द क्वेश्चन, लाइक व्हाट्स द परसेंटेज ऑफ मेल्स एम्प्लॉयड इन द कंपनी. सो मेल को हमने लिया x, सो फीमेल को लिया y. सो इफ
x इज इक्वल टू, जैसे मान ले y 20% है, then x is equal to what? 80%. So that is the only thing applicable, right? So if we put y as females as 20%, so then males are 80%. Question is percentage of males employed in the company, that is B, 80%. So here also we are using only one formula, average formula का sum of observations by total number of observations. So here also average of total, average दिया हुआ है, sum of observations by total number of observations x plus y का. See, then let's see one more question based on same formula. See, we just need to know how to use those terms. See, this question is asked in 2017. क्वेश्चन क्या है? एवरेज वेट ऑफ 9% इज 50 kg. सो एवरेज क्या है? 50 kg है. सो 50 इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ 9% बाई 9. सो हियर एवरेज है, फॉर्मूला क्या है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने? 9 है. 9% का वेट का बात कर रहा है. एवरेज है 50. सो टोटल वेट ऑफ पर्सन. सो टोटल वेट ऑफ पर्सन कितना आया 9% का? 50 इंटू 9, दैट इज 450 kg is equal to total weight of 9%. So yeah, then average weight of first 5% is 45 kg. So first 5 का क्या है? 45 is equal to, so total weight of first 5%. ठीक है. सो 5% का बात हो रही था बाई 5. सो टोटल वेट ऑफ फर्स्ट 5% इतना 45 इंटू 5 इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ फर्स्ट पर्सन, दैट इज लाइक 225 इज द टोटल वेट ऑफ फर्स्ट 5. ठीक है. देन क्वेश्चन क्या दिया हुआ? whereas average weight of last 5% is 55 kg. by last 5 का 55 into 5 is equal to total weight of last 5. so ये कितना हो गया? 55 5s are 275. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है? then the weight of 5th person will be, weight of 5th person will be, देखो अभी देखो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9% है. सो 9% का फर्स्ट 5 का एवरेज कितना? दैट इज 45 kg गिवन इन द क्वेश्चन. देन लास्ट 5 का एवरेज कितना? देखो लास्ट 5 का एवरेज कितना? 55 kg. अब इसमें क्या? 5th पर्सन का 2 बार आ रहा है. सो 2 बार आ रहा है. सो 2 बार आ रहा है तो पूरा 9% का फुल वेट कितना? सो टोटल वेट ऑफ 9% इज 450 kg, राइट? 450 kg 9% का. बट फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5 का ऐड किया तो 275 plus 225, that is like 10 500 है. सो इस पूरा फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5 का किया तो बट इस 500 में 5 2 बार आ रहा है. सो वी नीड टू subtract 500 minus 450, that is 50 kg. सो 5 का 5th पर्सन का वेट कितना है? 50 kg. बिकॉज जब 2 बार आ रहा है तो पूरा एक बार माइनस किया तो 5th का एक बार का वेट आएगा, दैट इज 50 kg.
So 50 kg is the answer. So simple thing, right? So again the same formula, 9 का total weight करना है, again 5 persons का first 5 का total weight करना है, then second 5 का total weight करना है using same formula. then भाई जब 9 का पूरा वेट ये है, सो इधर 2 बार आ रहा है 5 का, तो एक बार माइनस किया तो वो आ जाएगा. सो यूजिंग द सेम फॉर्मूला, सो देन अगेन सी देयर इज अनदर क्वेश्चन. सी 2017 में देखो, इधर भी 2017 में पूछा है, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2017. अगर देखो सेम इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चंस पूछा. अगर मान ले आपने 2016 का क्वेश्चन किया होता, 2017 में 2 क्वेश्चंस आपका आराम से हो जाता. देखो इधर भी देखते हैं. एवरेज रेनफॉल ऑफ ए सिटी इन फर्स्ट 4 days वाज रिकॉर्डेड एज 4.04 इंचेस. देखो फर्स्ट 4 days, सो इससे हमें क्या आएगा, एवरेज दिया हुआ है 0.4 इंच इज इक्वल टू फर्स्ट 4 days बाई 4. सो इधर आएगा टोटल रेनफॉल इन फर्स्ट 4 days. सो 0.40 इंटू 4 इज इक्वल टू टोटल रेनफॉल इन फर्स्ट 4 days आ जाएगा. सो दैट इज 0.40 इंटू 4 इज इक्वल टू 1.60 इंचेस. ठीक है, 1.60 इंचेस है टोटल रेनफॉल इन फर्स्ट 4 days. ठीक है, देन आता है द रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल इन द रिकॉर्डेड टू बी द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 days वाज इन द रेशियो 4:6. लास्ट 2 days का रेशियो दिया. द एवरेज ऑफ 6 days was 0.50 इंच. द एवरेज ऑफ 6 days, तो 6 days का भी दिया है. सो एवरेज ऑफ 6 days इज इक्वल टू 0.50. सो टोटल रेनफॉल इन 6 days डिवाइडेड बाई, तो 6 days का बात हो रहा है. सो टोटल रेनफॉल इन 6 days इज इक्वल टू 0.50 इंटू 6. सो दैट इज 3.00 इंचेस. 3.00 इंचेस. सो दैट इज 6 days का. अब 6 days का आया हमारे पास टोटल रेनफॉल इन 6 days एंड टोटल रेनफॉल इन 4 days भी, फर्स्ट 4 days भी आया. सो इफ वी माइनस लाइक 5th डे एंड 6th डे में कितना रेनफॉल हुआ वो कहाँ से आएगा. इफ वी माइनस 6 days का टोटल रेनफॉल माइनस फर्स्ट 4 days का रेनफॉल, दैट इज 1.60. दैट इज 1.40 है 5th एंड 6th डे का रेनफॉल. ठीक है, देन क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रेनफॉल ऑन लास्ट 2 days वाज इन द रेशियो 4:3. देखो लास्ट 2 days क्या है, 5th एंड 6th days इन द रेशियो 4:3, राइट. सो 4:3 3 में, तो 5th डे में हुआ 4 पार्ट्स एंड 6th डे में हुआ 3 पार्ट्स. ठीक है, सो पूरा हुआ 1.40. अब देखो 4 + 3 is 7. So 7 parts is equal to 1.40. See, this thing we will be discussing in ratio topic, how to do ratio and all. So 4 + 3 से 7 हो जाएगा. 7 parts is equal to 1.0. Then 1 part is equal to 1.40 by 7. That is, इसको कर लो 1.40 by 7 से देखो 140 by 7 कर लो. That is 214 0. So that is 0.20 आएगा. So 0.20 आया एक पार्ट का. सी अगर एक पार्ट का
0.20 है, सो 4 पार्ट्स का कितना होगा 0.20 इंटू 4, और 3 पार्ट्स का कितना होगा 0.20 इंटू 3, सो दैट इज 0.80 एंड 0.60. सो इंचेस से ये 0.80 0.60. सो ये 5th डे में हुआ 0.80 एंड 5th डे. क्वेश्चन आंसर क्या है, व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन 5th डे. सो 5th डे इज 0.80 inches, ये 0.60 inches. So answer is 0.80. See again same thing, right? See 4 दिन का दिया है, टोटल रेनफॉल ऑफ 4 डेज का आ गया. 6 डेज का दिया है एवरेज, टोटल रेनफॉल ऑफ 6 डेज का आ गया. बस थोड़ा ट्वीक क्या है 4:3 में, और रेशियो और वो कंबाइन किया. इधर से थोड़ा वी विल डिस्कस रेशियो कैसे करना है इन रेशियोस चैप्टर. आसान क्वेश्चन है, ठीक है. देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन 2018. सो 2018 का क्वेश्चन है. सी 2018 एवरेज hourly earnings per year of workers in a firm are represented in figures A and B as follows. देखो from figures hourly earnings, figure A है, figure B है. Average hourly earnings per year is given. So average क्या है, देखो years हावरली अर्निंग्स ईयर्स, और एवरेज दिया हुआ. एवरेज क्या है 20 एवरेज है इधर, एंड इधर भी 20 एवरेज है. देखो 2013 में, ठीक है, एंड 2014 में इधर 25 है एवरेज. सो हियर ऑल्सो 25 इज द एवरेज. देन 2015 में द एवरेज इज 30. So here also average is 30 only in 2015. In 2016 the average is 35 here. Here also the average is 35. Here 40, 40, 40, 40. So averages से सब पे same दिया हुआ. Then from the figures it is observed that values of E are different. No, values of E are same. So E is here average only, right? पर एवरेज हावरली अर्निंग्स पर ईयर इज रिप्रेजेंटेड एज ई. ठीक है, देखो इधर दिया हुआ. सो ईज आर सेम. रेंजेस दैट इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम ई आर डिफरेंट. नो, देखो मैक्सिमम 40 है इधर, इधर भी 40 है. मिनिमम 20 है, इधर भी 20 है. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. स्लोप्स ऑफ द ग्राफ्स आर सेम. यस, स्लोप्स ऑफ द ग्राफ्स आर सेम. सेम रेंज में इंक्रीज हो रहा है, इधर भी सेम रेंज में इंक्रीज हो रहा है 20-25 ईयर ऑन ईयर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ई आर डिफरेंट. नो, रेट्स आर सेम. हर साल एवरेज 5555 बढ़ रही है. सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. दिस इज लाइक वेरी इजी क्वेश्चन. इट इज लाइक जस्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. जस्ट ऑब्जर्वेशन स्किल्स, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. देन आता है अगेन 2018 में ओनली वन क्वेश्चन, एंड 2019 अगेन यूपीएससी इज बैक टू द फॉर्मूला. सो एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज 40. सो 40 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है बाई टोटल मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स. ऑफ 100 स्टूडेंट्स. सो 4000 is equal to total marks of 100 students. ठीक है, ये आया. एंड इट वॉज फाउंड दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर 53 विच वर मिसरेड एज 83. सो करेक्ट मीन मार्क्स आर. सो सी, mean is nothing but average. So write it here. Mean is equal to average. So corrected mean marks are. So एक क्वेश्चन में क्या दे रहा है, it was found later that
one student were marks of one student were 53 which were misread as 83. भाई उसको आया 53 है बट misread as 83. सो 30 मार्क्स जो है वो ज़्यादा हो लिख दिया. सो 30 मार्क्स डिफरेंस है. सो अब क्या है, 30 मार्क्स एक्स्ट्रा लिखा है. सो टोटल मार्क्स क्या है, ओरिजिनल टोटल मार्क्स क्या है, 4000 minus 30, that is 3970. So 3970 is the total marks of 100 students, but instead 40,000 हुआ. So now the question is corrected average is. So अब corrected average क्या होगा, total marks of the students 3970 by 100. तो यही तो होगा corrected average. Average is equal to, so आ गया. सो बाई एवरेज कितना हो जाएगा, 39.70 हो जाएगा. डिवाइडेड बाई 100, बाई 100 दो जीरो से इधर इधर आ जाएगा. तो 39.70 इज द करेक्टेड एवरेज. सो 39.7 इज द आंसर. दैट्स इट, राइट, सिंपल, राइट. सो जस्ट नीड टू नो टोटल मार्क्स कितना, भाई कितना एक्स्ट्रा है माइनस कर दो, फिर हो जाएगा. सो सी दैट इज वाई you need to understand PYQs. Similar based questions are asked year on year. Just few changes, इधर से वो increase हुआ and all. So then again look at another question on 2019 से. देखो 2019 में एक क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन देखो. A family has 2 children along with their parents. भाई 2 children है, parents कितने हैं, 2, mother and father. Average weight of children and their mother is 50 kg. Children कितने, 2. So that is what, देखो children 1 है, children 2 है, father है, mother है, ठीक है, फैमिली में. सो द एवरेज वेट्स ऑफ चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन का एंड मदर इज 50 kg. 50 kg is equal to weight of children 1 plus children 2 plus mother divided by 3. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स कितना है, 3 लोगों का है. सो चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2 प्लस मदर्स वेट इज इक्वल टू 50 इंटू 3, 150 kg. ठीक है. देन दिया हुआ द एवरेज वेट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 kg. by 52 kg average is equal to children 1 plus children 2 plus father divided by 3. so father इनका weight कितना हो गया, 156 kg. 52 into 3, राइट, ये 3 इधर है, 52 into 3 is equal to children 1 plus children 2 plus father. अब देखो इससे क्या आ जाएगा भाई, देन if the weight of father is 60 kg then what is the weight of mother. तो weight of father भी दिया हुआ father का. अब children 1 plus children 2 का weight कितना आया, 156 minus 60 father का इधर आ जाएगा. so that is 96 is equal to children 1 plus children 2 का weight है. अब इस इक्वेशन में पुट कर दो children 1 plus, so 150 is equal to children 1 plus children 2 plus mother. so children 1 plus 96 plus mother 150. so 150 minus 96 is equal to weight of mother. so mother's weight is equal to कितना भाई, 54 है. so 54 is the weight of mother. so option D is the correct answer. so कितना easy है, लाइक जस्ट एक फॉर्मूला है, उसको बस ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन. देखो मैं तो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा, अगर मेरे को यही एग्ज़ाम में करना होता ना, मैं सीधा सीधा इधर ये लिख देता, ठीक है, सीधा ये लिखता 152, देन माइनस कर देता सीधा, लाइक 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है ये. एंड कंसिडरिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो.
यही सब तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है. सो एंड यू विल सी 2022 में भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है. 2020 में भी देखो, एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स. देखो कितना है, टीचर है प्लस 3 स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3. सो एवरेज एज दिया हुआ है भाई, एवरेज एज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ टीचर प्लस स्टूडेंट 1 प्लस स्टूडेंट 2 प्लस स्टूडेंट 3 बाई 4 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो इससे हमें आएगा टोटल एज का एवरेज एज इज टोटल एज ऑफ टीचर कामा 3 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 80 ईयर्स. ठीक है, यही तो है. तो फिर क्या दिया हुआ, इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज. सो 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज. सो दिस इज लिटरली क्या, टीचर प्लस 3s इज इक्वल टू 80 ईयर्स. ठीक है, इधर देखो स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज है, सो 3s. देन एंड डिफरेंस, the difference between age of teacher and each student is 20 years. So teacher minus student is equal to 20 years. यही तो है. So teacher is equal to s plus 20. ये आ गया. So from this we can put it as like, right? So देखो, टीचर प्लस एस प्लस एस प्लस एस इज इक्वल टू 80 इस इक्वेशन से. ठीक है, देन टीचर इज इक्वल टू एस प्लस 20. सो हियर एस प्लस 20 प्लस एस प्लस एस प्लस एस इज इक्वल टू 80. तो भाई टीचर ये है, मैं ये पुट डाउन किया टीचर प्लेस में एस प्लस 20. सो 4s प्लस 20 is equal to 80. So 4s is equal to 60. So s is equal to 15. ठीक है. सो स्टूडेंट एज कितना है, 15 है. तो अगर स्टूडेंट ए पुट किया, टीचर इज इक्वल टू 15 प्लस 20 दैट इज 35. सो आंसर इज व्हाट इज द एज ऑफ टीचर, दैट इज 35. सो सिंपल, अगेन सेम फार्मूला, सेम इसी फार्मूलास यूज करके यही करना है. देर इज नो डिफरेंस. एवरी ईयर यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन. सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. सी वॉट एवर क्वेश्चन आई एम टीचिंग, प्लीज मेक नोट्स सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू रिवाइज. देखो 2020 का क्वेश्चन है. इन ए क्लास देर आर 3 groups A, B and C. If one student from group A and 2 students from group B are shifted to group C, then what happens to the average weight of students of the class? देखो just by reading it you can solve it. 3 groups है A, B and C. ठीक है, one student from group A, ग्रुप ए से एक स्टूडेंट शिफ्टेड टू फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी. व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. भाई बट पूरा स्टूडेंट्स तो उसी में है ना. ठीक है, कोई बाहर नहीं जा रहा है, सब स्टूडेंट्स उसी क्लास में है. सो एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास पूछ रहा है. इट रिमेन्स सेम. इट इज़ लाइक जस्ट बेसिक नॉलेज. सो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बस 10 सेकेंड काफ़ी है. क्वेश्चन पढ़ लिया, बेसिक एवरेज कॉन्सेप्ट पता है. एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द एंटायर क्लास इज नॉट शिफ्टिंग. बस ग्रुप ए में शिफ्ट हो रहा है, ग्रुप बी में शिफ्ट हो रहा है, ग्रुप डी में शिफ्ट हो रहा है, बट एंटायर क्लास इज सेम, राइट. सो वेरी इजी क्वेश्चन. देन 2020 में वन मोर क्वेश्चन. 2020 में देखो, द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन आफ्टर 50th इनिंग्स वाज
46.4. So average दिया 46.4 is equal to total score in 50 innings by 50. So पूरा कितना हो जाएगा 46.4 into 50 is equal to total score of 50 innings. So total score of 50 innings कितना हो जाएगा 46.504 into 50. See, this is like do calculation 2320. 2320 is total score in 50 innings. ठीक है. Then after 60th innings his average score increased by 2.6. तो by increased by 2.6. So average score, see, after 60th innings his average score increased by 2.6. So 46.4 plus 2.6 हुआ तो कितना हुआ 49.0. So 49.0 is equal is the average of 60 innings, like after 60 innings. So total score in 60 innings by 60 innings. So total number of matches 60. So it is like 49 into 60 is equal to total score in 60 innings. ये तो ये कितना हो जाएगा that is like 2940. ठीक है 2940 is total score in 60 innings. Then what was the average score in last 10 innings? So last 10 innings का चाहिए तो 60 innings का और 50 innings का माइनस कर दो 2940 माइनस 2320. सो ये कितने हो जाएगा इट इज़ लाइक 0 to 620. सो 620 रन्स बनाया टोटल स्कोर इन 10 innings. So 622 by 10. So that is like 1s are 6 2. See that is like 620 divided by 10, that is 62 is average in 10 innings. So option is 62. That's it, right? Very easy questions. Again same formula, same kind of question. देखो then 2020 में one more question. See 2020 में there are 4 questions asked from average and सारे same type of questions है. ऐसा ही करने वाला same. देखो ये भी, देखो ये भी सेम मॉडल क्वेश्चंस, बस एक मॉडल आ गया 4 क्वेश्चन इज 10 मार्क्स. सो दिस वन सी एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश दिया हुआ है, गर्ल्स का 9 है. एवरेज मार्क्स इन हिंदी गर्ल्स का 8 है. एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश बॉयज़ का 8 है. एंड ओवरऑल एवरेज है 8.8 एंड एक्स दिया हुआ है. सो ये फाइंड आउट करना है. सो हियर वी डोंट नो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर एंड हाउ मेनी बॉयज आर देयर. सो लेट्स assume number of girls is equal to G and number of boys is equal to B. ठीक है. सो एवरेज ऑफ गर्ल्स कितना दिया हुआ है. सो एवरेज ऑफ गर्ल्स इन हिंदी इन इंग्लिश is equal to 9 is equal to total marks in English by
total number of girls, so number of girls is G. So total marks in English is equal to 9G. So 9G is total marks in English. ये आ गया, ठीक है. Then again average marks of boys in English, ठीक है, that is 8, right, is equal to total marks by number of boys is B, that is 8B. 8B से आएगा total marks. So the अभी ओवरऑल एवरेज दिया हुआ है 8.8, ठीक है, ओवरऑल एवरेज है 8.8 इज इक्वल टू 9G प्लस 8B बाई G प्लस B. सो इधर देखो एवरेज 8.8 दिया हुआ है, सो 9G इज टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स एंड 8B इज टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज. सो उससे होगा भाई 8.8G प्लस 8.8B इज इक्वल टू 9G प्लस 8B. दैट इज कितना आ जाएगा, देखो इधर 0.2G, सो इधर ये इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0.8B. सो दैट इज लाइक 4. सो G इज इक्वल टू 4B, ये आ जाएगा, ठीक है. एंड इट कैन बी written as G by B is equal to 4 by 1 and G plus B, मतलब basically it is in the ratio 4:1 and G plus B is equal to 5. So if we apply, so average for हिंदी है इसका क्या है, so 8 into 4, 8 ये है एवरेज मार्क्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 4 प्लस 7 इंटू 1, दैट इज बॉयज 1 है बाई 4 प्लस 1 दैट इज 5. सो 8 4s are 32 प्लस 7 1s are 7 बाई 5, दैट इज 39 बाई 5. सो 39 बाई 5 इज लाइक 7.8 आएगा. 7.8. So this is like you need to be do lots of calculation and you need to apply the concept at multiple places. Concept same है but you need to apply it at multiple places. So same model question. So जैसे मान ले कि एग्जाम में इतना लेंथी क्वेश्चन आया, so you can ignore this or you can do it at last. इस तरीके का क्वेश्चन है जहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन करना है, ज़्यादा दिमाग भी लगाना है, ये आइडिया भी आना है कि भाई कैसे करना है. सो डोंट डू इट और डू इट एट द एंड. सो द आइडिया इज लाइक आपको 50 क्वेश्चंस टू 55 क्वेश्चंस ही करना है CSAT में. सो इफ़ यू एंड अप डूइंग ऑल दीज लेंथी क्वेश्चंस देन यू वोंट बी एबल टू फिनिश दिस थिंग, ठीक है. सो वो चीज़ें भी लाइक किस तरीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो चीज़ें भी आई विल डिस्कस यू इन फ्यू अदर लेक्चर्स ऑल्सो. सेपरेट क्लासेस करूँगा कि भाई कितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चंस करना है, मैथ्स के कितने क्वेश्चंस करना है, लॉजिकल रीजनिंग का कितने क्वेश्चंस करना है, ये सब डिस्कस करूँगा मैं. क्यों करना है सब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, कितने टाइम में करना है. अब डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स नाउ. अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, फिर एक बार वो हो जाएगा फिर आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स. सो चलते हैं फिर 2021 का क्वेश्चन. ऑन एवरेज देखो देर आर 2 क्लासेस A एंड B हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली. देखो ये है B है, ये में 25 स्टूडेंट्स है, B में 30 स्टूडेंट्स है. इन क्लास A हाइएस्ट स्कोर इज 21 एंड लोवेस्ट स्कोर इज 17. देखो क्लास A में क्या है, हाईएस्ट स्कोर है 21 एंड लोवेस्ट स्कोर क्या है 17. दिस इज हाईएस्ट
दिस इज लोवेस्ट, ठीक है। इन क्लास बी द हाइएस्ट स्कोर इज 30, 30 हाइएस्ट है क्लास बी में, एंड द लोवेस्ट स्कोर इज 22, 22 लोवेस्ट है, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। अब क्लास ए टू क्लास बी में से 4 स्टूडेंट्स शिफ्टेड है, 4 स्टूडेंट्स शिफ्टेड। सो ऑप्शंस दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। देखो अगर मान ले कि हाईएस्ट है 4 स्टूडेंट्स मिला, मान ले 4 स्टूडेंट्स को हमने लिया जो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर रहा है, लाइक 21, 21, 21 एंड 21, ये इन सबको भी किया तब भी कम नंबर वाले ही जा रहा है, इधर लोवेस्ट इज 22। सो ये ऑब्वियसली क्लास बी का एवरेज डिक्रीज करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर हमने लोवेस्ट को भी भेज दिया तब भी करेगा और हाईएस्ट को भी भेज दिया तब भी करेगा, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिकॉज इधर से एवरेज ऑलरेडी 30 मार्क्स, इधर स्टूडेंट्स कितने हैं, लाइक 30 से 22 के बीच में है, बट हम भेज रहे हैं कि जो 21 कम वाले, सो एवरेज बी का स्कोर डिक्रीज होगा ही, देन एवरेज स्कोर ऑफ ये विल डेफिनेटली इंक्रीज। नो, डेफिनेटली इंक्रीज नहीं होगा। मान ले कि हमने 4 स्टूडेंट्स है जो 17 मार्क्स स्कोर कर रहा है, उनको भेज दिया, तो ऑब्वियसली जो बाकी बच्चा हुआ उनका एवरेज तो इंक्रीज होगा ना। अगर 21 का किया तो डिक्रीज होगा, बट ये बोल रहा है कि डेफिनेटली इंक्रीज होगा अगर 4 स्टूडेंट। नो, अगर 17 मार्क्स जो आया है उनको भेज दिया 4 स्टूडेंट्स को, तो ऑब्वियसली इधर बचेगा 21 मार्क्स, 20 मार्क्स वाले बचेंगे। सो ये गलत स्टेटमेंट है, सो ओनली 1 इज करेक्ट, दिस इज द थिंग। सो जस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरेज। तो कम नंबर वालों को भेज देता तो वो कैसे अफेक्ट करेगा, ज़्यादा नंबर वालों को भेजेगा तो कैसे अफेक्ट होगा। देन लास्ट क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। से देखो, अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कर लेते तो कितने आसान हो जाता, ये क्वेश्चन भी हो जाता, सारे क्वेश्चंस हो जाते। देखो एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 40 kg। देखो एवरेज दिया हुआ 40 kg इज इक्वल टू वेट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई टोटल नंबर कितना 3। सो टोटल वेट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का कितना हुआ 120। 40 into 3, 120 is a plus b plus c. Then average weight of B, D, E is 42 kg. So 42 kg is equal to average weight of B plus D plus E by 3. So that is 126, 42 into 3, 126 kg is equal to B plus D plus E का weight है, ठीक है। अब दिया हुआ द वेट ऑफ F इज इक्वल टू दैट ऑफ B। देखो F है, F इज इक्वल टू B दिया हुआ है क्वेश्चन में। देन एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एंड F। देखो अब देखो एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी एंड F का क्या है। सो एवरेज वेट ऑफ ये इन सब का क्या होगा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बाई 6, ठीक है। अब देखो इधर से ए बी सी का आ गया हमारा 120, तो इधर 120 रखेंगे प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। देखो डी ई एंड बी का एफ है, सो इनका आ गया बाई 126 बाई 6, सो दैट इज 246 बाई 6। अब 246 बाई 6 को कर लो, 6 4 ज़ार 24, 6 1 ज़ार 6 0, सो 41 आ गया। सो 41 kg इज द एवरेज वेट ऑफ 6 लोग का कंबाइंड,
तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, जस्ट सेम कॉन्सेप्ट, बस इधर ये दिया हुआ है कि भाई f इज इक्वल टू वी है, बस इधर पुट करना है, आ गया. सो सी दीज आर द क्वेश्चंस यूपीएससी हैज आस्क्ड. सी I have solved all the questions UPSC has asked in past 6 years. ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किया. And what did I use? Just one thing. Just this one formula. And formula याद करने की भी जरूरत नहीं है. बस हमें ये पता होना है कि भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या है, एवरेज क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है. सिर्फ इसी चीज से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे थे. That's it. This is the first class, and in next class, class 2, we'll discuss about few other topics, that is like consecutive series का average. देखो इस पे यूपीएससी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आई एम एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन इन 2020 बेस्ड ऑन कंसिक्यूटिव एवरेज, बिकॉज ये क्या है, स्टेट पीसीएस, ठीक है, और जैसे वो एसएससी, ठीक है, कैट वगैरह पे भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है. सो इन टुमारोज क्लास वी विल डिस्कस कंसिक्यूटिव सीरीज का एवरेज. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. आई होप आपको इस क्लास देख के एवरेज को लेके थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला हो. Thank you very much. Bye.